Hello students, welcome to lecture number 6. Today's topic is eigenvalues and eigenvectors. Let us consider a matrix first. Example number first, we have a matrix 2, 3, 0, 1. Let us consider a 2 by 2 matrix. Okay. So, first is, let A is a square matrix, then A minus lambda I is known as characteristic matrix of A. So in this case, we'll write characteristic matrix. This is matrix A minus lambda times I. So A is 2, 3, 0, 1 minus lambda times I. What is I? I is identity matrix. So in this case, the size of identity matrix will be 2 by 2 because A is a square matrix of size 2 cross 2. So identity matrix is 1, 0, 0, 1. So this is equals to 2, 3, 0, 1 minus, we'll multiply lambda, 0, 0, lambda. This will be 2 minus lambda, 3 minus 0, 0 minus 0 and 1 minus lambda. So this is characteristic matrix of A. Okay. Next is characteristic polynomial. So characteristic polynomial is determinant of A minus lambda I. So we have already calculated A minus lambda I. So its determinant 2 minus lambda, 3, 0, 1 minus lambda. So we'll solve this determinant of size 2 cross 2. This will be equals to cross product. So 2 minus lambda multiplied by 1 minus lambda minus 0 into 3, 0. We'll multiply this. So 2 minus 2 lambda minus lambda plus lambda square. Or we can write lambda square minus 3 lambda plus 2. So this is the characteristic polynomial. Okay. Next is characteristic equation. If we put this value equal to 0, this will become characteristic equation. Okay. So characteristic equation is determinant of A minus lambda I when it is put equals to 0. It means lambda square minus 3 lambda plus 2 equals to 0. This is characteristic equation. Next is roots of this are known as eigenvalues of A. So roots of this characteristic equation, its roots will be, we'll calculate the roots. Roots will be 2 and 1. These values are known as eigenvalues of matrix A. Okay. So first eigenvalue lambda 1 is 2 and second eigenvalue lambda 2 is 1. Okay. Next is non-zero vector capital X corresponding to eigenvalue lambda of A satisfying this equation is known as eigenvector of A. Okay. So capital X एक वेक्टर है. वेक्टर मीन्स ये भी एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स इस आइगन वैल्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी जो आइगन वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं. वो वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या लाएगा? आइगन वेक्टर. ओके. सो इस एग्जांपल में देखते हैं. कुछ आइगन वेक्टर्स लेते हैं. सपोज कैपिटल X1 मैंने ले लिया 5, 0. वेक्टर मीन्स एक मैट्रिक्स होगी n क्रॉस 1 साइज की. एक दूसरा आइगन वेक्टर तो नहीं, ये भी वेक्टर कहना चाहिए बिकॉज आइगन वेक्टर वो तभी बनेगा जब वो कंडीशन फॉलो करेगा. ये 3 वेक्टर्स ले लिए मैंने. अब देखते हैं इनमें से कौन से वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स बनेंगे. ओके. आइगन वेक्टर्स कौन से होंगे? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स. सो देखते हैं. ए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल एक्स. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज ए मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एक्स. ए इज 2, 3, 0, 1 कैपिटल एक्स. x1 के लिए देखते हैं सबसे पहले. फॉर x1 ओके. सो 5, 0 जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा? 2 5 10, 0.
ओके, राइट हैंड साइड देखते हैं. राइट हैंड साइड इज लैम्डा एक्स. लैम्डा क्या है? इन दोनों में से कोई एक आइगन वैल्यू देखते हैं. सबसे पहले ये 2 देखते हैं. सो 2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एक्स 5 0, ये आ गया 10 0, दोनों इक्वल आ गए. इट मीन्स x1 इज आइगन वेक्टर ऑफ ए corresponding to eigen value lambda 1 is equals to 2. सपोज आइगन वैल्यू हम 2 की जगह पर 1 लेते. अगर 2 की जगह पर हम 1 लेते तो यहाँ पर होता 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो आता 5 0, जो कि अनइक्वल है. इट मीन्स x1 जो है वो आइगन वेक्टर है इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग. ओके, ऐसे ही x2 का चेक करते हैं. लेट अस चेक फॉर x2. ओके, सो a मल्टीप्लाइड बाय x2 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स x2. a 2 3 0 1, x2 इज 5 5. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. तो ये कितना आ रहा है? 2 5 ज़ा 10 15 25 एंड 5. ओके, अब राइट हैंड साइड देखते हैं. लैम्डा इंटू x2. लैम्डा एक बार 2 ले लेते हैं, एक बार 1 ले लेते हैं. लैम्डा 1 x2 देखते हैं और लैम्डा 2 x2 देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है. जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेटिस्फाई करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो आइगन वेक्टर बन जाएगा. ये कितना आ गया? 10 10, अनइक्वल है. इट मीन्स x2 इज नॉट एन आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1. लैम्डा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं. लैम्डा 2 इज 1, x2 इज 5 5, ये आ गया 5 5. ये भी अनइक्वल है. इट मीन्स ये जो x2 हमने वेक्टर लिया है वो आइगन वेक्टर नहीं है कैपिटल ए का. इट मीन्स x2 इज नॉट एन आइगन वेक्टर ऑफ ए, क्योंकि किसी भी आइगन वैल्यू के लिए उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है. x3 के लिए देखते हैं. फॉर x3 ए x3 शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स x3, और वो लैम्डा दो आइगन वैल्यू में से कोई एक भी आइगन वैल्यू होनी चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड इज a इंटू x3. सो 2 3 0 1 मल्टीप्लाइड बाय x3 क्या लिया हमने? ये -3 1. ये कितना आ गया? -6 3 3 1. ओके, अब राइट हैंड साइड देखते हैं. लैम्डा x3, एक बार लैम्डा 1 x3 के लिए देखते हैं, एक बार लैम्डा 2 x3 के लिए देखते हैं. लैम्डा 1 x3 मीन्स 2 टाइम्स x3, तो ये कितना आ रहा है? -6 2, अनइक्वल है. ओके, लैम्डा 2 x3 देखते हैं. लैम्डा 2 इज 1 एंड x3 इज -3 1 इज इक्वल टू -3 1. ये देखो, ये दोनों इक्वल आ गया. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स x3 इज आइगन वेक्टर ऑफ A corresponding to लैम्डा 2. तो लैम्डा 1 के लिए हमें एक आइगन वेक्टर मिला. कौन सा? x1. ये था आइगन वेक्टर. x2 आइगन वेक्टर नहीं था और x3 आइगन वेक्टर था. तो इस आइगन वैल्यू के लिए हमें ये वाला आइगन वेक्टर मिला और इस वाली आइगन वैल्यू के लिए ये आइगन वेक्टर मिला. अब क्वेश्चन इज, ऐसे कितने आइगन वेक्टर्स पॉसिबल हैं, या फिर ये जो आइगन वेक्टर मुझे मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं, कैसे फाइंड आउट करना है. ओके, तो उसके लिए वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स एंड द स्टेप्स आर दिस. Algorithm to find eigenvalues and eigenvectors of a matrix. We have 3 steps. First of all, we have to write the characteristic equation. Second is, we have to solve the characteristic equation so that we can find the eigenvalues. And third is, after finding eigenvalues, we have to find the corresponding eigenvector using this equation. Okay. So अब इसी एग्जाम्पल में देखते हैं. ये वाली जो हमारी मैट्रिक्स है, इसी में देखते हैं कि आइगन वेक्टर हमें कैसे फाइंड आउट करना है. अभी तो हमने चेक किया था कि इनमें से कौन से आइगन वेक्टर्स हैं.
अब ये फाइंड आउट कैसे करने हैं, ओके देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we'll find आइगन वेक्टर ऑफ A corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2। पहली आइगन वैल्यू के लिए हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए है ये कंडीशन A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 0, और ये एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट द आइगन वेक्टर बी x1 इज इक्वल टू एक्स वाई, ये हमने ले लिया कि आइगन वेक्टर है, बस x और y की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होंगी इसमें। सो कंडीशन इज A माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, A माइनस लैम्डा 1 आई इंटू x1 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। वैल्यूज पुट करते हैं। A इज 2301 माइनस लैम्डा टाइम्स आई इंटू दिस x1 xy इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स आएगी, क्यों? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मैट्रिक्स आने वाली है। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 माइनस लैम्डा 3 0 1 माइनस लैम्डा, ये लैम्डा 1 चल रहा है, मैट्रिक्स इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करते हैं। लैम्डा 1 इज 2, सो 2 माइनस 2 0 3 0 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा ये, 3y इज इक्वल टू 0 एंड माइनस y इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस वी विल गेट y इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम दिस विल गेट अगेन y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब x की वैल्यू तो आई नहीं, हमें यहाँ से इसको सॉल्व करने से दो इक्वेशंस मिली और दोनों में ही y मिला हमें, और दोनों से y की वैल्यू 0 मिली है, x की कोई वैल्यू नहीं मिली। इट मीन्स x इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन्स x को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। सो लेट x इज इक्वल टू k वेयर k इज अ रियल नंबर। देयरफॉर x1 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, k 0। इट मीन्स इस k की जगह अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो वो हमेशा आइगन वेक्टर बनेगा, लेकिन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे कि हमने x1 लिया था, तो देखिए दिस इज k 0। अब 5 की जगह पर यहाँ पर कोई भी नंबर होता तो ये x1 हमेशा आइगन वेक्टर होता इस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग, बट ये आइगन वेक्टर इस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं आया। ओके, ये ध्यान रहेगा, ये आइगन वेक्टर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा 1। नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड द आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2। Now for lambda 2 is equals to 1, let the eigenvector x2 is xy. So this should satisfy the condition a minus lambda 2 I multiplied by x2 is equals to 0। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कितना होगा, 2 माइनस लैम्डा 2 0 0 सॉरी 3, यहाँ पर है 3 1 माइनस लैम्डा 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 is equals to 0 0। value of lambda 2 is 1, so 2 minus 1 1 3 0 0 multiplied by xy should give 0। now we will multiply, we will get x plus 3y is equals to 0। एक ही इक्वेशन आई है हमारे पास, बट द अननोन्स आर 2 x and y। इट मीन्स इन दोनों में से एक फ्री वेरिएबल होगा। फ्री वेरिएबल मीन्स उसकी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो आर्बिट्रेरली लेट वी विल पुट y इज इक्वल्स टू k। y को हमने फ्री वेरिएबल मान लिया। अब y को जब k पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, -3 टाइम्स k, वेयर k इज एनी रियल नंबर। सो देयरफॉर वी विल गेट x2 इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी है, -3k, y इज k। अब इस टाइप का जो भी वेक्टर होगा वो हमेशा आइगन वेक्टर होगा a का,
कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 1। के को कुछ भी पुट कर सकते हैं, सपोज के इज़ 1, तो x2 कितना हुआ -3, 1 -3 1, ये आइगन वेक्टर हुआ था, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। ओके, सो हेंस द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए आर, पहला आइगन वेक्टर कौन सा मिला था हमें, k0, और दूसरा कौन सा मिला, -3 k। अब k दोनों में सेम हो रहा है तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको k1 ले लेते हैं और इन दोनों को k2 ले लेते हैं। ओके, सो दीज आर द आइगन वेक्टर्स। अब याद रहे कि ये k1 और k2 आर्बिट्ररी रियल नंबर्स हैं, इनकी जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। ओके, और वी कैन राइट द आइगन वेक्टर्स आर 1 0, k को हमने k1 को 1 पुट कर दिया, अब k2 को भी 1 पुट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -3 1। ओके, या तो हमारा आंसर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ओके, दोनों सेम है। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, ये जो डेफिनेशन हमने लिखी थी आइगन वेक्टर की, यहाँ पर हमने ये स्पेसिफाई किया है नॉन ज़ीरो वेक्टर एक्स। ओके, सो ये जो वेक्टर है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए हमेशा। इट मीन्स ये जो हम k1 और k2 की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं ये हम ज़ीरो नहीं पुट कर सकते हैं, बिकॉज अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए हमेशा। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, a is 2 3 0 2 this time. Okay, we have to find the eigenvalues of a and the eigenvectors of a. So सबसे पहले हमें क्या चाहिए, we need characteristic equation so that after solving that equation we will find the eigenvalues and with the help of those eigenvalues we can find the eigenvectors. So characteristic equation के लिए क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को इक्वल टू 0 पुट करना है। अब a माइनस लैम्डा आई कितना हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा 3 0 2 माइनस लैम्डा, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 में पुट करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2,2। इट मीन्स इस बार जो दोनों आइगन वैल्यूज़ हैं वो इक्वल है, दो आइगन वैल्यूज़ हमें मिल गई। मैट्रिक्स ए का जितना साइज होगा उतनी ही आइगन वैल्यूज़ हमें मिलेंगी हमेशा। नाउ वी विल फाइंड द आइगन वेक्टर्स फॉर आइगन वेक्टर। लेट x1 बी द आइगन वेक्टर। अब ये जो हम आइगन वेक्टर निकालने वाले हैं ये लैम्डा 1 के लिए निकालें या लैम्डा 2 के लिए निकालें एक ही बात है, क्योंकि दोनों आइगन वैल्यूज सेम है। ओके, सो फॉर आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2, बिकॉज बोथ आर इक्वल दिस टाइम। तो हमें क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाइड बाय x1 को 0 पुट करना है। अब a माइनस लैम्डा लैम्डा है 2, वो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 3 0 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x1 विच इज xy इज इक्वल टू 0। सो ये तो 0 हो गया, 0 3 0 0 में मिला। जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y की वैल्यू हमें 0 मिल गई। x के लिए इक्वेशन नहीं आई है इस बार, सो इट मीन्स x फ्री वेरिएबल है, आर्बिट्रेरली उसको कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। सो लेट x इज k इज सम रियल नंबर। सो देयरफॉर आइगन वेक्टर क्या मिला है हमें, k0, वेयर k इज रियल नंबर। रियल नंबर तो है बट अगेन 0 हम नहीं पुट कर सकते हैं, बिकॉज 0 पुट करने पर ये 0 0 0 वेक्टर बन जाएगा। तो ये आइगन वेक्टर हमें मिल गया इस बार। ये एग्जाम्पल नंबर 1 से डिफरेंट क्यों है, बिकॉज एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ मिली थी, यहाँ पर सेम आइगन वैल्यूज़ मिली हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में
दो आइगन वेक्टर्स मिले थे, एक और एक, दो। यहाँ पर एक ही आइगन वेक्टर मिला है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था दोनों में। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। This time we will take a 3 by 3 matrix, 2 1 minus 6 minus 1 minus 2 0. Now we have to find the eigenvalues and eigenvectors. First of all, for characteristic equation minus 2 minus lambda, 1 minus lambda, 0 minus lambda, 2 minus 3, 2 minus 6 minus 1 minus 2, its determinant should be equals to 0. तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे आप लोग, 3 by 3 का जब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 21 लैम्डा माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। जितना मैट्रिक्स का साइज होता है 3x3 है, तो उतनी ही डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी। अब उतनी डिग्री की पॉलिनोमियल मिल रही है तो उतने ही रूट्स मिलेंगे। इट मीन्स मैट्रिक्स का जितना साइज है उतनी आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगी। अब जब इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट फर्स्ट आइगन वैल्यू -3, लैम्डा 2 -3 एंड लैम्डा 3 5। इस बार दो आइगन वैल्यूज सेम है और एक डिफरेंट है। नाउ फॉर आइगन वेक्टर corresponding to lambda 3 is equals to 5। सबसे पहले इसके लिए देख लेते हैं। Let x3 okay x y z, क्योंकि मैट्रिक्स जो है 3 by 3 की है, so this condition must be satisfied, a minus lambda 3 I into x3 is equals to 0। now a minus lambda 3 I, ये कितना हो जाएगा, -2 -5 2 -3 2 1 -5 -6 -1 -2 0 -5 multiplied by x y z is equals to 0 0 0। मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया -7x 2y -3z is equals to 0। now 2x -4y -6z is equals to 0। now -x -2y -5z is equals to 0। now we have 3 equations and 3 unknowns. We can solve this system of linear equations. We will get x is equals to 1, y is equals to 2, z is equals to -1. So we have the eigenvector corresponding to lambda 3, which is 1 2 -1। now for eigenvector corresponding to lambda 1 or lambda 2, both are same, -3, let x1 be x y z, okay। now a minus lambda 1 or lambda 2 I into x1 should give 0। now ये कितना हो जाएगा, -2 -3, so +3 2 -3 2 1 +3 -6 -1 -2 and +3 multiplied by x y z should give 0 0 0।
Now let us multiply them. On multiplying we'll get x plus 2y minus 3z is equals to 0. 2x plus 4y minus 6z is equals to 0. Minus x minus 2y plus 3z is equals to 0. Okay. Now we have 3 equations and 3 unknowns? No. In this case, we have 3 unknowns but not 3 equations. If we see carefully, we can see that all these 3 equations are same, because in equation first, if we multiply it by 2, we'll get the second equation, and if we multiply it by -1, then we'll get the third equation. So there is only one equation, x plus 2y minus 3z is equals to 0. Now since we have only one equation but 3 unknowns, so we have to put 2 variables to some arbitrary value. It means 2 वेरिएबल्स को फ्री वेरिएबल हमें ट्रीट करना पड़ेगा. अब इन तीनों में से किसी भी 2 वेरिएबल को हम ले सकते हैं. लेट y बी सपोज k1, z को हमने ले लिया k2, और k1 और k2 दोनों क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे. तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x हो जाएगा यहाँ से, ये राइट हैंड साइड जाएगा, तो 3k2 माइनस 2k1. Okay. So therefore the eigenvector x1 is 3k2 minus 2k1, y is k1 and z is k2. k1 और k2 को हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if we put k1 is equals to 1, k2 is equals to 2, then we'll get the eigenvector 3 into 2 6 minus 2 4, k1 है 1, k2 है 2. या फिर k1 को हमने 1 पुट कर दिया, k2 को 0 पुट कर दिया, तो हमें एक आइगन मिल जाएगा. k1 को 0 पुट कर दिया, k2 को हमने 1 पुट कर दिया, तो एक आइगन मिल गया. k1 को 0 पुट कर दिया, k2 को भी 0 पुट कर दिया. ये हम नहीं कर सकते, बिकॉज अगर दोनों को हमने एक साथ 0 कर दिया तो ये आइगन वेक्टर कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. ओके. अब बात करते हैं कि किसी भी आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स पॉसिबल हैं. यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स पॉसिबल है, बिकॉज ये k1 और k2 जो है रियल नंबर्स हैं, तो कितनी भी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इन सभी आइगन वेक्टर्स में से बहुत से ऐसे आइगन वेक्टर्स हैं जो कि सेम हैं. इन्हें हम मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट. जैसे कि ये इक्वेशंस थी, ये आपको देखने में तो 3 डिफरेंट इक्वेशंस लग रही हैं, बट ये तीनों एक ही हैं. इट मीन्स ये तीनों इक्वेशंस जो हैं इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के. इंडिपेंडेंट का मतलब, जैसे ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से मिलकर के बनी है, उसकी हेल्प से बनी है. थर्ड इक्वेशन भी फर्स्ट की हेल्प से बनी है. थर्ड इक्वेशन को हम 2 की हेल्प से भी बना सकते हैं. इट मीन्स ये तीनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हो रही हैं, तो इन्हें बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस. ऐसे ही यहाँ पर जो आइगन वेक्टर्स हैं, ये हम k1 और k2 की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, तो हमें अलग अलग आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, बट ये सारे डिफरेंट नहीं हैं, इनमें से कुछ सेम भी है. तो ये बात आएगी लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स की, जो कि हम आगे लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं. फ़िलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास. आई एम गोइंग टू गिव यू सम मैट्रिसेस. यू हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, फर्स्ट मैट्रिक्स इज 0 2 -2 0.
Second is matrix B 3 1 4 0 2 6 0 0 5. And third question is matrix C 3 10 5 minus 2 minus 3 minus 4 3 5 7. Okay. Find eigenvalues and the corresponding eigenvectors. So that's all for this lecture. Thank you.